Yes. Now yesterday we was discussing about the applications of the inductive effect. Yesterday's portion is clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, Everyone? ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Up next is your stability of carboanion. Okay. Now the first question comes over here that what is the meaning of the carboanion? Then अब हमें ये समझना होगा. Yesterday like we discussed about the carbocation, we should know that what is the meaning of the carboanion. So let's look what is the carboanion. Now carboanion is basically a what? These are the species containing a carbon atom carrying a negative charge and Good morning, ma'am. good morning beta possessing 8 electron in its valence shell. Up focus on the definition. What the definition is saying that these are the carbon atoms which are having a negative charge and they have the 8 electrons in their valence shell. It means that they are going to be the electron rich species. And why they are going to be the electron rich species? Because they have the extra electrons. Ab how they are going to have the extra electron? Say suppose you are having any molecule over here. Okay. Now what is going to happen? Okay. इनका bond break होगा. When the bond gets break, तो electrons which was shared over here, it moved to over here. When it have moved over here, तो CH3 के पास negative charge will come and the electrons which moved I show by the two dots. Plus Z will lose the electron, so plus sign will come over here. In this manner, they are going to have the complete 8 electrons in their valence shell as well as they are going to have the negative charge. Is this point is clear to everyone? Yes. Is this point is clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now let's relate it with the your eye effect because हम inductive effect के applications के अंदर पढ़ रहे हैं. So just relate them with the inductive effect. When we talk about the stability of carboanion, then it is directly proportional to the minus I effect and inversely proportional to the plus I effect. Okay? मतलब क्या हो गया इसका? जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही कम स्टेबल आपका कार्बो एनायन होगा. Got it? मैं आपने क्या लिखा है? Cl has extra electron. Where? ऊपर मैम ये एग्जांपल सा दिया है. because it has extra electron. क्लोरीन है मैम ये. कहाँ है क्लोरीन? अच्छा बिकॉज है मैम ये.
हाँ वो ये इट को तीन, पूछ रहा है, वो आपको इट लिखा हुआ है ना वो, बिकॉज इट हैज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. वो इट को Okay. क्लोरीन समझ. Okay, fine. Now let's look its example. अब अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं ओवर हियर, okay, now it is what it is. And this is your methyl carboanion. अब which one is going to be the most stable in this case? देखो अब यहाँ पे मिथाइल कार्बन. मिथाइल कार्बोनाइन. yes, your stability order will be this. The reason being to it is what, क्योंकि ये वाला methyl group will donate the electrons over here, this will also donate, this will donate over here. तो यहाँ पे इस वाले कार्बन के ऊपर which is in the center, it is going to have the increased electron density. इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा हो जाएगी. इस केस के अंदर ओनली 2 आर हेयर, इस केस में ओनली 1 इज ओवर हेयर, और यहाँ पे तो कोई मिथाइल ग्रुप इज नॉट अटैच्ड ओवर हेयर, देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल. नाउ लेट्स लुक इन द केस ऑफ योर रिंग फॉर्मेशन. मैं अगर मैम इसी में कार्बोकैटायन पूछते तो ये अपोजिट हो जाता ना. यस, तो अपोजिट हो जाता. अब look over here, what is going to happen? These electrons will come over here. ये electrons यहाँ पे आ जाएंगे, तो here double bond will be here like this. When double bond will come over here, तो दो double bond cannot exist together, so it will come over here. Therefore, now this negative charge is going to come over here. This bond is going to shift over here. The double-sided arrow you have to make, always remember. Negative charge will come over here. Now again what is going to happen? This negative charge will going to come over here. Okay. So your CH2 again shifting will take place. So ultimately it will give rise to this structure. Now in this particular case, this is your benzyl carboanion. Okay. Another main topic point, like yesterday I told you that triphenyl carbocation is going to be C6H5 3C with negative charge. मैम आपने कुछ लिखा है बोर्ड पे बेंजाइल कार्बोनाइल के बारे में?
ये फिनाइल कार्बोनाइन प्रेक्टिक। हाँ, वीडियो भी नहीं आ रही और ऑडियो भी अटक अटक के आ रही है। ये टाइम मैम वीडियो तो आ रही है मैम। मैम आ नहीं रही आवाज। मैम अटक अटक के आ रही है। कोई वीडियो पॉज हो गई है। now it is paused. And you are able to look everyone. नो मैम। Ma'am, your voice is also not. Ma'am, your voice is cracking. नो मैम, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई मैम। बेटा मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा मैम, अटक अटक के आ रहा है। Yes, ma'am. बेटा 1 minute. Yes. Now screen is visible. यस मैम, Yes. वॉइस भी आ गई मैम आपसे। यार, Yes. Okay, fine. Now, जैसे yesterday I told you people कि triphenyl carbocation is going to be the most stable. Similarly, over here also triphenyl carboanion is going to be the most stable carboanion. Got this point? यस मैम। Up. Yes. Let's do one question from this part. Say suppose we are having now which one is going to be the most stable carboanion? मैम CH3। Means order will be 3। yes. क्यों होगा? What will be the reason? मैम क्योंकि बहुत कम प्लस आई इफेक्ट होएगा इसमें। Yes, because हम ये कहते हैं और over here because it is not going to have the plus I effect over here और यहाँ पे more number of the plus I group, therefore it is going to be the less stable carboanion. Is that clear to everyone? मैम का इफेक्ट का फर्क किस वजह से पड़ रहा है इन पे? CH3 वजह से। CH3 की ग्रुप की वजह से, क्योंकि CH3 ग्रुप जो है इट इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे this is going to donate, this is going to donate, this is going to donate. यहाँ पे only this and this, यहाँ पे only this one. Over here we are not having anyone. Clear this point everyone? Reason is clear? Yes. यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. I'm hoping that you people are writing. Yes. यस मैम। Less stable carboanion. Okay. Ayushman is here, Devesh, Gurneet, Jogender,
कल्प, खुशी, प्रियांशी, रिधि, साक्षी, सारा, सारिका, सतेंद्र, शुभी, वंशिका. Dorothy and Prashant are not here. Prashant again unavailable. Okay, fine. Up a simple type of the question we have done for both the cases, that is your plus I also, and in the case of the carbocation also, and in the case of the carboanion also. This part is clear to everyone. How you are going to correlate the inductive effect with the carbocation and carboanion? Yes, ma'am. Is Yes, it? ma'am. Yes. Now देखो, besides this, say suppose if we have a question in such a manner, CH2, CH, CH2, CH3, fluorine, CH2, CH2, CH, CH3 and fluorine, CH2, 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 CH2 and fluorine. Minus charge and a minus charge. Now anyone is going to tell me that out of all these which one is going to be the maximum stable, and what are the reasons, and what are the effects which are coming over here. Ma'am, last one. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कौन सा इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है. इंडक्टिव इफेक्ट ओनली वी आर डूइंग, सो अभी आप सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ ही अपना दिमाग लगाएंगे. Ma'am, last one. लास्ट वन विल बी व्हाट? Maximum. मैक्सिमम. अच्छा, एनीवन एल्स? मैम प्लस आई इफेक्ट है यहाँ पे. अच्छा, प्लस आई इफेक्ट है. हाँ, एनीवन? माइनस आई. अच्छा, एनीवन? कौन सा इफेक्ट है और which one is going to be the most stable in this case? इसमें कार्बोएनायन वाला लग रहा है. कार्बोएनायन तो है, आई एम आस्किंग इफेक्ट कौन सा लग रहा है. मैम लास्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होएगा. मैम इसमें माइनस आई इफेक्ट लग रहा है. अच्छा, others those who are sitting quietly बताइए आप लोग भी, what which effect is coming over here? माइनस आई इफेक्ट. माइनस आई इफेक्ट. और कोई? anyone else? anyone else, or should I give the reason? Now I ask you over here that which effect is coming over here and which is going to be the maximum stable over here. So very first thing is what, that in this particular case you are having the which effect? माइनस आई. माइनस आई. क्यों है माइनस आई? मैम क्योंकि जो फ्लोरीन है वो अपनी तरफ कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा. Yes, over here the very first thing is what? Yes beta. Yes beta. The very first thing is, your voice is not coming beta. Minus I effect is
वर्किंग ओवर हेयर। माइनस आई इफेक्ट क्यों वर्क हो रहा है? बिकॉज योर फ्लोरीन एटम्स विच आर अटैच्ड ओवर हेयर, दे आर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो what they are going to do, they are going to attract the electrons towards them. Okay, now एक्सक्यूज I, मी मैम, yes बेटा, मैं अगर इसमें फ्लोरीन नहीं होता और आप इस CH2 लिख देते मैम, तो कौन सा इफेक्ट होता? +2 आ जाता. CH2 नहीं, CH3, +2 आ जाता. CH3 क्यों आता? क्योंकि जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, दे ऑल आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. अभी तो क्या हमने ऊपर बेटा? नो मैम, मैं ये नहीं पूछ रहा मैम. हाँ. जैसे ये फ्लोरीन जिस मतलब फर्स्ट फर्स्ट ले लो आप, ये CH से कनेक्ट है, तो इस CH में अपन CH2 लिख देते और ये फ्लोरीन हटा देते, तो भी इसमें माइनस आई इफेक्ट ही होता. तो कोई भी इफेक्ट नहीं होता अब इसमें नेगेटिव चार्ज तो रहता. जब तक आप यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच नहीं करोगे, तब तक आप कैसे इफेक्ट दिखाओगे? CH2 जो है, CH2 यहाँ पे आप किस बेसिस पे लिखते? भाई यहाँ पे CH2 आता कैसे? अगर से सपोज मैं इसे हटा देती हूँ और इसे 2 कर देती हूँ, एक ये आ गया, तो कौन सा ग्रुप इसके साथ अटैच दिखाओगे? कोई तो अटैच दिखाओगे ना, या तो माइनस आई वाले दिखाओगे या प्लस आई वाले दिखाओगे. अब और मैम जो ऊपर CH2 एग्जांपल दिया है, फिर आपने इसमें भी तो कोई सा ग्रुप नहीं जोड़ रखा, किस में नहीं जोड़ रखा? इसमें सब में CH3 है. हाँ, तो आप मुझे CH2 बोल रहे हो ना बेटा, CH2 थोड़ी कोई ग्रुप है. मतलब फिर कुछ नहीं CH होता, CH2 कुछ होता भी तो. नहीं होता, कुछ भी नहीं होता इसमें. सिंपल वो कार्बोकेटाइन होता, अगर माइनस चार्ज में लिख देती. सॉरी, कार्बोएनाइन. मैम हाँ बेटा, समझ नहीं आ रहा माइनस आई इफेक्ट कब आएगा और प्लस आई कब आएगा? बेटा मेरी बात सुनो. When we was reading the inductive effect, तो मैंने आप लोगों को एक सीरीज दी थी. Yes. यस मैम. अब I told you, ma'am. I told you कि जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ विड्रॉ करता है, मींस इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, दैट पर्टिकुलर ग्रुप अगर वो अटैच है आपके कार्बोकेटाइन या कार्बोएनाइन के साथ, देन यू आर गोइंग टू हैव द माइनस आई इफेक्ट. और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज बीइंग अटैच्ड, तो देयर विल बी द प्लस आई ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट. मतलब जो ऊपर वाला एग्जांपल वो प्लस आई इफेक्ट का है ना? ये रहा ना बेटा, लिखा तो है. हाँ मैम, आप समझ में आ गया मेरे को. देखो, इंडक्टिव इफेक्ट व्हेन वी वाज डूइंग यू, आई प्रोवाइडेड यू अ सीरीज. और सीरीज भी छोड़ो आप, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा, देन देयर विल बी द प्लस आई इफेक्ट. अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, देन देयर विल बी द माइनस आई इफेक्ट. मैम फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना? यस भाई, देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या हो गए? दे ऑल आर गोइंग टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स देम. क्यों? क्योंकि दे आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द नेचर. तो ये कार्बन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये बॉन्ड तो बना लेते हैं बाय शेयरिंग, बट दे आर गोइंग टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स देम. गॉट द पॉइंट? यस मैम. अब समझ में आया? यस मैम. ओके फाइन. अब इधर देखो बेटा ध्यान से. आई टोल्ड यू कि माइनस आई इफेक्ट इज कमिंग ओवर हेयर. द रीजन बीइंग इज व्हाट? क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड. यहां तक पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. अब Yes. our question, the second question which I asked you people is what? कि इन तीनों में से which is going to be the maximum stable? कौन सा इन तीनों में से मैक्सिमम स्टेबल होगा? नाउ मेरा रीजन जो है यहाँ पे, इट इज व्हाट? दैट दिस वन इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम स्टेबल. नाउ टेल मी, what is the reason behind it?
मैंने मैम ये आपको मैम ये ब्लू नेगेटिव बॉक्स वाला मैक्सिमम स्टेबल है। हाँ हाँ सत्येंद्र बोलो क्या बोल रहे थे। हम ये CH2 से उसका नेगेटिव चार्ज ले लेगा क्योंकि वो उसके सबसे पास है। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। देखो अब नेगेटिव चार्ज का मतलब इट इज अ कार्बोएनायन, isn't it? And कार्बोएनायन is directly proportional to the minus I effect. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट उतना ज्यादा आपका कार्बोएनायन इज गोइंग टू बी स्टेबल इन द नेचर। नाउ इफ यू आर गोइंग टू लुक तो इस फ्लोरीन का डिस्टेंस इस CH2 से सबसे ज्यादा पास है। यहाँ पे थोड़ा दूर हो गया और यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर हो गया। Therefore, it is going to be the maximum stable. मैम पास कैसे हुआ? पास ऐसे हुआ कि ये फ्लोरीन इस कार्बन एटम से अटैच है और ये वाला कार्बन डायरेक्टली फिर आपके इस CH2 से अटैच है। सेकंड वाले में भी तो ऐसा ही है। मैम पास ये है बीच तो में क्या हो ये गया? बीच में CH2 नहीं आ गया। पास है तो ज्यादा माइनस आई हो गया बेटा, क्योंकि माइनस आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन। ये वाला CH2 आ गया ना, लास्ट वाले में तो सीधे कनेक्ट है। कहाँ कनेक्टेड है सीधा बच्चे, ये है ये है ये है फिर यहाँ आया अरे सारे CH2 है ना। तो क्या हो गया, लेकिन चार्ज तो इसके पास है ना, चार्ज इनके पास थोड़ी है। जिसके पास चार्ज होगा वही तो कार्बोएनायन है। ओके मैम। एक मिनट बेटा, लुक, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा माइनस आई उतना ज्यादा आपका कार्बोएनायन स्टेबल। तो यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस कम है तो बहुत ज्यादा इफेक्ट है माइनस आई, देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम स्टेबल। गॉट और नॉट Yes. यस मैम। एवरीवन? यस मैम। आ गया सबको समझ में? यस मैम। Minimum distance of fluorine, therefore maximum minus I effect of fluorine, therefore maximum stable. And you can add over here this also कि minus I effect ज्यादा होगा तो charge will be minimum negative charge. Done this much? यस मैम। यस मैम, डन। Everyone Yes, done? ma'am. Up in this particular Yes, inductive effect we have done two types of the question. Two types हमने कैसे कर लिए कि एक एग्जाम्पल किया when your electron donating group is being attached और एक एग्जाम्पल we have done when electron withdrawing group is attached. लेकिन हर केस में सेम ग्रुप अटैच्ड था. Let's do another example. One minute. Now tell me which is going to be maximum stable. Up for solving this question, you require to refer the series which I provided you.
नाउ फ्लोरीन वाला। एक मिनट रुको जोगिंदर। द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे द ग्रुप्स विच आई अटैच्ड ओवर हेयर दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जितने भी ग्रुप्स हैं मैम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। जितने भी ग्रुप्स हैं दे ऑल आर व्हाट दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। यस अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से मींस व्हाट इफेक्ट इज कमिंग ओवर हियर minus I. माइनस Minus आई। I. The Minus I. middle one is more stable. अब एक मिनट खुशी माइनस आई इफेक्ट इज कमिंग ओवर हियर नाउ। अब आप लोग सेकंड स्टेप पे आओगे। सेकंड स्टेप पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका फ्लोरीन OH एंड NH2 इन तीनों ग्रुप्स में से विच वन इज द मोस्ट मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और कौन सा कम है। OH. Ma'am, is the OH. maximum, then Ma'am, Maximum and NH2 is the minimum. एक बार इस सीरीज रेफर करो बेटा। Ma'am, मैम series OH से तो सबसे लेके कम है। चार। है मैम OH मैम, OH सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन का ज्यादा है। फ्लोरीन का ज्यादा है। हम फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन का ज्यादा है। Yes, ध्यान हम से हम NO2 है, हम NH2 नहीं लिखवाया आपने। NH2 is amine. Amine is a very weak agent. तो हमको नहीं, नहीं, फ्लोरीन ही आएगा। नहीं। The maximum. जोगिंदर एक मिनट जोगिंदर आई प्रोवाइडेड द 2 सीरीज। मैंने 2 सीरीज दी थी बच्चे। Yes, ma'am. हम्म, दूसरी वाली में है। दूसरी वाली में NH2 है। अब कम है, बताओ उसकी काफी छोटा है। किसका सबसे ज्यादा है। मैम पहले फ्लोरीन, यस फिर फिर OH, OH, फिर NH2। फिर यस NH2. OH फिर NH2। NH2। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर देन। डिक्रीजिंग ऑर्डर। यस डिक्रीजिंग ऑर्डर। और आप रीजन में क्या लिखोगे। रीजन में यू आर गोइंग टू राइट डाउन maximum minus I effect of fluorine, therefore negative charge will be minimum on this, therefore it is going to be maximum stable. समझ में आया। यस एवरीवन समझ में आया। यस मैम। यस पक्का। Yes, ma'am. अब यस मैम। अब मुझे टुडे यू पीपल टेल मी के इंडक्टिव इफेक्ट कितना समझ में आ गया। अब 90%। मैम 90-95. मैम 90%। है ना। अब हम 80% क्वेश्चन कर देंगे। है ना। अब इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ अब वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास मींस डे आफ्टर टुमारो वी विल बी स्टडिंग अनदर इफेक्ट आल्सो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आपको क्वेश्चन आए उसमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही काम करे। लाइक नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ में वी विल स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ रेजोनेंस इफेक्ट भी कैसे काम करेगा। ओके ओके मैम। ओके मैम। meantime for today your homework is what सबके पास every one of you look the Google, isn't it? So put on a Google the questions related to the minus I or plus I.